हाँ भाई, तो बेटा ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾਈ ਗੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾਈ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੈਸ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਕਲ x y ਜਾਂ z ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 1/3 ਆ। ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, px, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਲਿਖਵਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ px ਯਾਨੀ ਕਿ x ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, x ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੋਨੋਂ, ਇੱਕ x ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ x, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ px ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਆ m ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਮਾਸ, ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਸਮਾਲ n ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ x ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ mn, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ vx ਸਕੁਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ vrms ਸਕੁਅਰ ਇਨ x ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ x ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ rms ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਮੀਨ ਸਕੁਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਮੀਨ ਸਕੁਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬੋਲਣਾ, ਸਕੁਅਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, रूट नहीं लिया, रूट हटा देंगे फिर आरएमएस वेलोसिटी आ जाएगी, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट ले लेंगे। वाई डायरेक्शन दे विच जिहड़ा एवरेज प्रेशर है एम एन, एम ते एन साइड ते नोट करूंगा, वी आर एम एस स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। मैं साइड ते नोट कर देना, एम हैगा मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दा मास है, और स्मॉल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल n अपॉन v। ये अपन यूज होना कितने कितने, ओके। आ जाओ ते pz यानी कि z डायरेक्शन च देखांगे तो mn, ये भी vrms का स्क्वायर, पर ये डायरेक्शन किहड़ी आ z। और मैं तुहानू एक गल दसनी चाहना भी असीं दस्सिया नहीं होया पार्टिकल्स नूं भी तुसीं x वाल नूं तेज चलना तो y वाल नूं हौली चलना। मेरे कहने का मीनिंग ये आ भी आ तीनों वैल्यूज ਜਿਹੜੀਆਂ these are equal, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜੇ x ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ y ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆ, ਉਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ z ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ x y ਤੇ z ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸੇਮ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਹੇਅਰ vrms square along x-axis is equal to vrms square along y-axis is equal to vrms square along z-axis। तीनों डायरेक्शंस की वेलोसिटीज इक्वल आ, याद हो गया? हो गया। हुण आपां एवरेज प्रेशर एंड एवरेज प्रेशर वो फाइंड कर, एवरेज प्रेशर यानी कि टोटल नेट प्रेशर कितना, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ, ਐਵਰੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, एक्स वाई ਤੇ z ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ p ਐਵਰੇਜ avg ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਲਾ p ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। that is equal to px plus py plus pz divide by 3, px plus py plus pz divide by 3, okay। ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ m ਤੇ n ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, 1/3 ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਆ ਗਿਆ, 1/3 m into n, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ v rms square x axis ਦੇ along plus v rms square
वाई एक्सिस दे अलोंग प्लस वी आर एम एस स्क्वेयर जेड एक्सिस दे अलोंग। मैं अलग अलग करके प्लस करके लिखते तीनों। इन्हां तिन्नां नूं मैं ध्यान नाल सुन रहे हो गल हो गया इन्ना हो गया। इन्हां तिन्नां नूं मैं की लिखिया इन्हां दे सम नूं भी एक्स एक्सिस दे अलोंग वाई एक्सिस दे अलोंग ते जेड एक्सिस दे अलोंग। ठीक है इन्हां तिन्नां दे अलोंग एक्चुअली च आया कित्थों मैं माड़ा जिहा हुण थोड़ा जिहा तुहानूं वैक्टर ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ तुहानूं याद होऊगा। तुहानूं वैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ v ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ v x i ਕੈਪ प्लस v y j कैप प्लस v z k कैप। हाँ जी कंसनट्रेट इत्थे आओ। आ चीज जिहड़ी आई मैं बोलिया भी ये तीनों इक्वल आ। इन्हां तिन्नां दे सम नूं की लिखना इन्हां तिन्नां दे सम नूं लिखना आपां वी आर पी एवरेज इज इक्वल टू पहला तो मैं फार्मूला लिख देना फिर मैं उस सवाल जिहड़ा कल शुरू कीता सी उहदी वैल्यू लिख दूंगा एम एन वी आर एम एस स्क्वेयर। मैं तुहानूं एक गल दस रहा सी शायद याद होवे तुहाडे v वैक्टर इज इक्वल टू v x i कैप प्लस v y j कैप प्लस v z k कैप। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ v ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖੋਗੇ vx ਸਕੁਅਰ प्लस vy ਸਕੁਅਰ ਤੇ प्लस vz ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਲਿਖਦੇ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅੰਡਰ ਰੂਟ vx ਸਕੁਅਰ प्लस vy ਸਕੁਅਰ प्लस vz ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਆ vx ਸਕੁਅਰ ਆ vy ਸਕੁਅਰ ਆ vz ਸਕੁਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ vrms ਸਕੁਅਰ। और ये तीनों बराबर ये मैं पहले ही नोट कर चुका भी ये तीनों इक्वल नोट कर लिया। आ साडा फार्मूला बन गया एवरेज प्रैशर का। इस फार्मूले दी दो तीन फॉर्म कल भी लिखवातियां दोबारा लिख लो भावें। इस फार्मूले दी दो तीन फॉर्म्स मैं कल भी लिखवा चुके हैं अज तुसीं एक बार होर लिख लो किहड़ियां फॉर्म सी दस्सिओ मैनूं। देखो स्मॉल एन नूं कैपिटल एन अपॉन वी लिख दईए 1/3 एक पार्टिकल का मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू वी आर एम एस स्क्वेयर याद है तुहानूं। और आ m इंटू n की बने एक पार्टिकल का मास या एक मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस का मास आ गया टोटल मास ऑफ गैस। तो मेरे को फार्मूला एवरेज प्रैशर का की बन गया सब तो इंपॉर्टेंट फार्मूला बनया 1/3 कैपिटल M अपॉन V इंटू VRMS स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर एवरेज प्रैशर एक्सर्टेड। एवरेज प्रैशर एक्सर्टेड का फार्मूला कितना बेटा 1/3 M अपॉन कैपिटल M अपॉन V इंटू VRMS स्क्वायर। वो तो ले लो कोई नहीं कर दो तुसी। हाँ जी हेलो आ रही है आवाज। हो गया कैपिटल M अपॉन V इंटू VRMS स्क्वायर। फिर उस तो बाद मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होंदी है एवरेज प्रैशर कितना आया 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। ये मेरे को एवरेज प्रैशर दे तीन फार्मूले बने। मेरा क्वेश्चन ये नहीं सी कल वाला। मेरा क्वेश्चन की सी मेरा क्वेश्चन ये सी भी VRMS दी वैल्यू एक्स एक्सिस दे अलोंग कितनी VRMS along x axis VRMS along y axis इधर वाल नूं VRMS along z axis तीनों वैल्यूज अलग अलग डायरेक्शन च अलग अलग है ना। तो आपां नूं वैल्यू पूछी सी कल और उत्थे आपां थोड़े जे कॉम्प्लिकेशन च सीगे। प्रैशर का फार्मूला वही है मेरा अलग नहीं है पर हुण डिटेल होगी। आ जाओ आ तीनों इक्वल आ तुहानूं दसता एरो ला के लिखांगे RMS velocity of gas molecules along x axis ਦੇ along gas molecules ਦੀ RMS velocity x axis ਦੇ along ओके। तो देखियो कितना ये आ गया मेरे को बेटे VRMS along x axis लिखना गल सुनियो माड़ी ध्यान नाल सुनियो x axis दे along लिखना। अच्छा y axis दे along भी उन्नी होगी z axis दे along भी उन्नी होगी तिन्ना दे along इक्को जी होगी। तो एक दे along फाइंड करांगे तो बाकी दो भी उदां दी होणगे VRMS स्क्वायर
along x-axis plus VRMS square along y-axis plus VRMS square along z-axis is equal to किधे equal VRMS square normal value VRMS square is equal to किधे VRMS square याद हो गया आ तीनों इक्वल बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर इक्वल इनू नंबर पा दियो कोई ਇਹਦਾ मतलब मैं इनू कितना लिखा 3 VRMS square along x axis is equal to VRMS square ਆ VRMS ਸਾਰੀ ਗੈਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ V ਲਿਖੀ ਸੀ x y ਤੇ z ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ VRMS ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 3 ਕਰ ਦੋ ਓਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤਾਂ VRMS along x axis ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨੋਟ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ VRMS along x axis the square is equal to VRMS the square divided by 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਵੈਲਿਊ ਆ VRMS along x axis ਤਾਂ ਰੂਟ ਲੈ ਲਓ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ VRMS divided by under root 3 ਗੈਸ ਦੀ RMS velocity divide by root 3 ਕਰ ਦੋ ਗੈਸ ਦੀ RMS velocity divide by root 3 ਕਰ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ x axis ਦੇ along RMS velocity ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਬੋਲੋ ਬਈ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ x axis ਦੇ along RMS velocity ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਆ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਮਿਲਰਲੀ y axis ਦੇ along ਤੇ z axis ਦੇ along ਸੇਮ ਲੱਗਦਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਪਰ ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਆ VRMS along y axis is equal to VRMS along z axis is equal to VRMS divided by under root 3 ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਖੀ ਆ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਰਹੇ ਵੀ x y ਤੇ z ਦੇ along ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵੈਲਿਊ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾ 100% ਸਮਝ ਆਇਆ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ एक्सक्यूज मी सर हाँ बोल बेटा सर जो हमने VRMS तीनों एक्सिस पे इक्वल लिया था सब हमने अज्यूम करा था अज्यूम नहीं किया होता है बेटा प्रैक्टिकली मैंने प्रैक्टिकली ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 1/3 ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮੈਂ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ नो सर ਜੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੇਮ ਮੰਨਾਂਗੇ ਆਪਾਂ यस सर ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਓ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸੁਣਿਓ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਆ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम ਉਹ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਥਡਸ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम ਠੀਕ ਆ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम ਹੁੰਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम ਕਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਠੀਕ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम
मतलब पार्टिकल रोटेट करन लग जाण। तीसरियां डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ वाइब्रेशन करन लग। ਤਾਂ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किन्ने तरह ਦੀਆਂ बेटा? 3 टाइप्स ਦੀਆਂ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल ਤੇ वाइब्रेशनल। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, नॉर्मल ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਆ ਦੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, हाई ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, these two exist at normal temperature। ਇਹ ਦੋ normal temperature ਤੇ exist ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ vibrational ਕਿੱਥੇ exist ਕਰਦੀਆਂ? at high temperature। ਇਹ high temperature ਤੇ exist ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, F is equal to 3n minus R। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ 100% ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੋਨੋਟੋਮਿਕ ਤੇ ਲਾ ਦੋ, ਡਾਈਟੋਮਿਕ ਤੇ ਲਾ ਦੋ, ਟ੍ਰਾਈਟੋਮਿਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਟ੍ਰਾਈਟੋਮਿਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਮੋਨੋਅਟੋਮਿਕ ਗੈਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਾਈਟੋਮਿਕ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਟੋਮਿਕ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ, ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ। ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਐਂਡ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰੋ, ਓਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੈਸ ਟਾਈਪ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਗੈਸ ਦਾ ਟਾਈਪ। ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਟਾਈਪ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਸ ਦੇ ਟਾਈਪ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम ਕਿੰਨੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਲਓ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਟ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਗੈਸ ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਆ, ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਟ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ, ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਮੋਨੋਅਟੋਮਿਕ। ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਆ? ਮੋਨੋਅਟੋਮਿਕ ਗੈਸ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ, ਮੋਨੋਅਟੋਮਿਕ, ਡਾਈਟੋਮਿਕ, ਟ੍ਰਾਈਟੋਮਿਕ ਫਰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਟੋਮਿਕ ਲੀਨੀਅਰ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਟੋਮਿਕ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੋਨੋਅਟੋਮਿਕ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੋਨੋਅਟੋਮਿਕ ਗੈਸ 'ਚ ਇੱਕ ਆ ਲੈ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਨੋਅਟੋਮਿਕ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਐਟਮ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲਓ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲਓ, ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲਓ, ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਕੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम ਕਿੰਨੀ ਆ? 0। ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम? ਪੱਕੀਆਂ ਵੀ 3 ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 3। ਟੋਟਲ 3 ਹੋ ਗਈਆਂ, 3 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਬੁੱਕ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਦੀਆਂ। ਆ origin ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਐਕਸ ਆ, ਦੂਜਾ ਵਾਈ ਆ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜ਼ੈਡ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲਓ, ਉਹਦੀਆਂ 3 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम ਇੱਥੇ ਲਿਖ। ਕਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰੀ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, 1 ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम ਮੋਨੋਟੋਮਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ, ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ।
मोनोटॉमिक दियां 3 ਹੁੰਦੀਆਂ और तीनों ही ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल कोई भी नहीं ਹੁੰਦੀ। नंबर 2 चलो डाईएटॉमिक। डाईएटॉमिक डाईएटॉमिक ਦਾ मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ स्पेस ਜ਼ਿਆਦਾ कर लेना, एक्चुअली ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। डाईएटॉमिक, ਹੁਣ डाईएटॉमिक ਚ 2 ਐਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, यानी कि आ डाईएटॉमिक ਆ, ਇਹ डाईएटॉमिक ਆ। ਤਾਂ डाईएटॉमिक देखो ट्रांसलेशनल मोशन ਤਾਂ हो ही सकती है, ये तो पक्की है। एक्स एक्सिस ਦੇ ਅਲੋਂਗ, वाई एक्सिस ਦੇ ਅਲੋਂਗ, जेड एक्सिस ਦੇ ਅਲੋਂग ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ट्रांसलेशनल मोशन ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਵੀ डाईएटॉमिक ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, डाईएटॉमिक ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ डाईएटॉमिक ਮੋਲੀਕਿਊਲ, मेरी गल समझो, आ डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल, आ एक्स एक्सिस आ वाला, आ वाई एक्सिस एक तो वाई एक्सिस दे अबाउट इदां रोटेट कर सकदा है, वाई एक्सिस ऊपर नूं जा रहा, आ जेड एक्सिस आ तुहाडे वल नूं, इहदे अबाउट इदां रोटेट कर सकदा। एक्स एक्सिस दे अबाउट नहीं रोटेट कर सकदा, आ रोटेशन नहीं मानदे। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? यानी कि रोटेशन 2 तरह हो रहा, फॉलो कर रहे हैं, मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर देना भी आ मॉलिक्यूल आ, ध्यान नाल देखियो, आ मॉलिक्यूल आ एक्स एक्सिस आ, इत्थे विचाले इहदे वाई एक्सिस उपर वाल नूं बना देना ते जेड बाहर नूं कर देना। फॉलो कर रहे हैं? एक्स एक्सिस दे अलोंग तो रोटेशन हुंदा नहीं, वाई एक्सिस दे अबाउट इदां घुम सकदा, जेड एक्सिस दे अबाउट घुम सकदा, तां 2 ते हो गए, ते 3 ट्रांसलेशनल हो गईयां। 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, टोटल कितनी हो गया नॉर्मल टेंपरेचर पे 5। नॉर्मल टेंपरेचर ते डाईएटॉमिक दियां 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुंदियां, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल। नोट हो गया, रट्टा नहीं मारना, गल समझ आ जांदी वधिया। 3 ट्रांसलेशनल हुंदियां ते 2 रोटेशनल हुंदियां। आ जाओ डाईएटॉमिक तो बाद ट्राईएटॉमिक। ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल 2 तरह के हुंदे, एक लीनियर ते दूसरे नॉन लीनियर। ट्राईएटॉमिक लीनियर ते ट्राईएटॉमिक नॉन लीनियर। पहला ट्राईएटॉमिक लीनियर की गल करा, ट्राईएटॉमिक लीनियर ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा भी एटम तो 3 आ पर हैगे लीनियर, एटम 3 आ नॉन लीनियर नहीं कि लीनियर है। लीनियर का मतलब एक लाइन दे विच आ, एक लाइन च 3 एटम किदां आउंदे आ, जे आ 2 आ विचाले एक 3 होर ला देना, मतलब कहने का ये भी आ लीनियर आ वाले आ देखो, हुण इदां ही रहने सीधे, ये लीनियर आ। क्लीयर? तां जदों घुमना देखो ट्रांसलेशनल तो 3 पक्कियां, इत्थे तो 3 लिखी देवां, रौला रोटेशनल दा भी, रोटेशनल कितनियां होणगियां, तो रोटेशनल अगे वांगू देखो एक तो एक्स एक्सिस ही हो गया तुहाडा, उधर वाल नूं घुमना ही नहीं, बचे वाई ते जेड, तो 2 हो गईयां। ट्राईएटॉमिक लीनियर दियां 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुंदियां, 3n-r दे विच ये चीज नहीं मिलदी। 3n-r गलत दसदा, तां करके 3n-r नूं आपां नहीं यूज करना। सिंपल ध्यान रखो भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनियां कितनियां होंदियां। ट्राईएटॉमिक जिहदा कार्बन डाइऑक्साइड आ CO2, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? आ चीज आ, तो मैं इत्थे ट्राईएटॉमिक ड्रॉ करा, देखो पहला 2 सीगे, अपना किहड़ा जोर लगदा, विचाले एक तीजा होर ला दिंदे। आ पिछली बारे विचाले है नहीं सी, देखियो ध्यान दे नाल, हुण विचाले लगा ता, ओके। तां उपर वाल नूं वाई एक्सिस, बाहर वाल नूं जेड एक्सिस, ते एक्स एक्सिस इसी डायरेक्शन च, तां बेटा 2 रोटेशनल हो गईयां, वाई ते जेड दे अलोंग, एक्स एक्सिस दे अलोंग रोटेशनल है नहीं, तां रोटेशनल 2, यानी कि जिन्नियां डाईएटॉमिक उन्नियां ट्राईएटॉमिक लीनियर दे विच, जिन्नियां डाईएटॉमिक उन्नियां ट्राईएटॉमिक लीनियर दे विच। आ जाओ ट्राईएटॉमिक नॉन लीनियर, ट्राईएटॉमिक नॉन लीनियर,
नॉन लीनियर का मतलब हुंदा ऐदां दा, आ देखो ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, आ देखो ये नॉन लीनियर, लीनियर नहीं गए, ठीक है ना। रिलेशन रिलेशन 3n - r नहीं लाना, ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ट्रांसलेशनल कितनी ते रोटेशनल कितनी है, सारा कुछ नॉर्मल टैंपरेचर ते चल रहा। अजे तक मैं हाई टैंपरेचर की गल की नहीं, जे हाई की गल करी भी तो मैं सिर्फ डाईटॉमिक करूंगा, ट्राईटॉमिक नहीं की जा सकती। ओके, सिर्फ डाईटॉमिक च करांगे ये गल। तो बेटा देखियो ध्यान दे नाल, नॉर्मल टैंपरेचर ते ट्राईटॉमिक दे विच नॉन लीनियर दे विच 3 ट्रांसलेशनल पक्कियां, ये तो लोहे ते लकीर मारी हुई है भी 3 तो सारे च ही आ। गल रोटेशनल दी है भी रोटेशनल कितनी है, ध्यान नाल सुनियो। हुण नॉन लीनियर मॉलिक्यूल आ, इनू एक्स एक्सिस दे अराउंड, वाई एक्सिस ते जेड एक्सिस, इनू इन्हां तिन्नां दे अबाउट किसी भी तरीके नाल असीं घुमा सकदे, ठीक है। इनू किसी भी तरीके नाल घुमा सकदे आ, तिन्नां दे अबाउट किसी भी एक्सिस दे अबाउट घुमा के देख लो। अपने कोल कोई ट्रायंगल पिया होवे कोई भी किसी भी शेप दा, उन्होंने भावें तां एक्स एक्सिस दे अलाउंग घुमा लो, भावें वाई एक्सिस दे, ते भावें जेड एक्सिस दे, जिहदे अबाउट मर्जी घुमा लो, वो वधिया घुमूगा। लीनियर नहीं घूमता, मतलब वाइब्रेशनल रोटेशनल कितनी है इहदियां 3, कितनी रोटेशनल 3 ते टोटल कितनी 6। आ चीज तुहानू कदों काम आऊ, जदों तुसीं सीपी सीवी दी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। जदों तुसीं सीपी एंड सीवी दी वैल्यू नू कैलकुलेट करोगे ना, उदों तुहानू आ चीज काम आउणी है। फॉलो कर रहे गल नू कि नहीं कर रहे? जदों तुहानू सीपी सीवी दी वैल्यू जिहड़ी आ वो तुसीं कैलकुलेट करनी आ, उदों तुहानू आ चीजां काम आउणीਆਂ। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ लिखा सी आपां, स्मॉल एफ, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नू याद हो गया सारिਆਂ ਦੇ? चलो, तो डायग्राम भी जे बनाना तुहाडा जी करदा तुसीं बना सकदे, कोई वड्डी गल नहीं। 3 एक्सिस मैं ड्रॉ कर देना, डायग्राम थोड़ा वड्डा बना देना है, तुसीं इस बॉक्स च ही बनाओ, मैं थोड़ा वड्डा ड्रॉ कर देना ताकि तुहानू ज़्यादा वधिया समझ आवे। ऊपर ड्रॉ कर देना, तुहानू समझ अच्छा आ जाऊगा, ठीक है। भी तीनों एक्सिस दे अबाउट इदां किदां घुम लैंदे। देखो 3 डायमेंशन च चलांगे आपां। बना लिया? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखियो आ चीज है मेरे को, फॉलो कर रहे हैं 3D च। एक ट्रायंगल से मैं तीनों एक्सिस ते तीनों पार्टिकल रखते, एक एक्स ते रखते, एक वाई ते। हुण जे एक्स दे अबाउट भी घुमा सकदे, वाई दे अबाउट भी ते जेड दे अबाउट भी, तिन्नां दे अबाउट आ एक्स एक्सिस आ दे अबाउट भी घुमा लो, वाई एक्सिस आ दे अबाउट भी घुमा लो, आ जेड एक्सिस आ दे अबाउट भी घुमा लो। तो 3 तो हो गया रोटेशनल ते 3 ट्रांसलेशनल एक्स वाई ते जेड दे अलाउंग बनदियां, टोटल कितनी हो गई 6। डायग्राम बना लो, गल समझण वास्ते आई, ठीक है। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मान लो टैंपरेचर हाई हो जाए तो सिर्फ एक डाईएटॉमिक इदां दी चीज है जिहदे विच तुसीं ध्यान करना, 5 तो है ट्रांसलेशनल ते रोटेशनल ते प्लस 2 करके वाइब्रेशनल, वाइब्रेशन भी कर मॉलिक्यूल, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी कर, ओदियां 2 हुंदियां, वाइब्रेशन दियां 2 ही हुंदियां, पक्कियां ही आ भी 2 ही हुंदियां, ठीक है बेटा। तो लिख सकते हैं, नोट पा लियो भावां अलग तो, एट हाई टेंपरेचर डाईएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स हैज, diatomic gas molecule has 2 additional vibrational degrees of freedom. At high temperature, diatomic gas molecule has 2 additional vibrational degrees of freedom. ਉਹਦੀਆਂ 2 extra vibrational degrees of freedom ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम ਦੇ ਬਾਰੇ 100% ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम ਚੀਜ਼ ਕੀ, ਇੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੱਲੋਂ, એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ।
ये मोशन दे सारे। ठीक है, आ जाओ हुण दो टॉपिक आ छोटे छोटे। एक तो हैगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल गैस, आइडियल गैस ही होगी। एक मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान रखियो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल गैस, इनू मोलर काइनेटिक एनर्जी भी कह देंगे। की कह देंगे बेटा? मोलर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका दूसरा नाम की है मोलर, एक मोल दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। मतलब कहने का यह भी डरना नहीं सौखा ही है। मैं सिर्फ फार्मूला लिखवाऊंगा मोलर काइनेटिक एनर्जी का। की फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का? कि मोलर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बेटा के लिखदा, के एम लिखदा, एम फॉर मोलर, या मोलीक्यूल वास्ते एम लाइए? मोल वास्ते तो तुसी के ही लिख लो। ठीक है, के मोल लिख लो। एक मोल गैस की जी काइनेटिक एनर्जी होंगी वो होंगी बेटा 3/2 RT। 3/2 RT केमिस्ट्री च भी पढ़ी होगी, 3/2 RT। और जे एक मॉलिक्यूल की पता करनी हो, जे ही काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की पता करनी हो तो 3/2 KT एक मॉलिक्यूल की। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? भी एक मोल च पता की है कुछ भी नहीं। एक मोल दे विच कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे आ? एक मिनट मेरी गल सुनो, एक मोल च कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे आ? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो एवोगैड्रो नंबर NA हो गया। NA मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 R/NA × T। R/NA की बन गया? वोल्टेज मान कांस्टेंट K, पढ़ाया था परसों। वोल्टेज मान कांस्टेंट K तो थोड़ा 3/2 KT बन। तो लिख दो ये भी गल, एरो ला के लिखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी फॉलो कर रहे हैं? तो K ऑफ मॉलिक्यूल, मैं MOLE मॉलिक्यूल ही लिखता पूरा ही, अपना केड़ा जोर लगता। एक K मोल हो गया, एक K मॉलिक्यूल हो गया। एक कितनी बनती है? 3/2 R बाय एवोगैड्रो नंबर NA × T। मैं जान के लिखा NA, कितों आया पता लग गया? वो यूनिटरी मैथड लाया परले पासे। तो K मॉलिक्यूल कितना आ गया? ये आ गया 3/2 K वोल्टेज मान कांस्टेंट के नाल T। K लिख लो, K कौन है? K हैगा वोल्टेज मास कांस्टेंट। K हैगा वोल्टेज मास कांस्टेंट, वोल्टेज मास कांस्टेंट। मैनू पूरी उम्मीद है तुहाडे क्लीयर है। जे किसी को नहीं समझ आया वो बच्चा क्वेश्चन कर लवे। जे किसी को नहीं समझ आया वो बच्चा क्वेश्चन कर। ठीक है, इस तो गां जो मर्जी फाइंड करी जाए, ग्राम की फाइंड करनी है। मान लो K मॉलिक्यूल है, तुहानू पूछ लिया नहीं जी 1 ग्राम गैस आ, खुद ही पता करो। भी ऑक्सीजन गैस दे दी तुहानू भी 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस आ, ਉਹਦੀ काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ਤਾਂ ਮੋਲ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੋਲ ਚ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ? ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲ ਹੁੰਦੇ? ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਕ ਮੋਲ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ? 32 ਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ 32 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 32 ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ। मेरी मर्जी का सवाल आ, वैसे मिल जू ये नाल दे क्वेश्चन तुहानू। ठीक है ना, क्योंकि मैं जे कल्ले फार्मूले च उलझाया ना तुहानू तो तुसीं उलझ जाओगे इस गल ते। आपां क्वेश्चन ही करते सीधा, ताकि तुहाडे खाने च गल तां बैठे। लिखियो फाइंड आउट एवरेज काइनेटिक एनर्जी
Find out average kinetic energy of 1 gram. Find out average kinetic energy of 1 gram. बोलो की किहड़ी गैस? ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। देखो इदां दा कोई पुछदा भी सवाल ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ बोलो? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? चलो नाइट्रोजन करो। of N2 गैस, नाइट्रोजन गैस 1 ग्राम N2 गैस, 1 ग्राम N2 गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी पता करो। हुण ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल जिहा पर बच्चे डरदे की करिए बच्चों, बच्चे नन्हे मुन्ने आ, बच्चे तो फुल आ, डर जांदे आ, डरना ठीक है ना। आ जाओ देखो N2 गैस, देखो आपां नूं पता आ भी K मोल दा मतलब की आ 3/2 RT। K मोल दा मतलब पता है ना तुहानूं, एक मोल। मॉलिक्यूल नाल स्टोरी जी समझ औखी लगदी आ, आपां मोल ते चलांगे ठीक है। K मोल, एक मोल दी काइनेटिक एनर्जी नहीं सानूं पता। 1 ग्राम, ग्राम दी गल ही नहीं कीती असीं, सानूं पता भी 1 मोल च किन्ने ग्राम ठीक है। 1 मोल N2 गैस is equal to 28 ग्राम N2 गैस। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ therefore मैं जानबूझ के लिख रहा ये चीज, हालांकि तुसीं बाद च डायरेक्ट करी जाओ ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल यानी कि 28 ग्राम N2 गैस इज इक्वल टू 3/2 RT। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ then you have to use Kelvin, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਵਿਨ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ ਮੋਲਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ 1 ग्राम N2 गैस is equal to 3/2 RT/28। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਇਹਦਾ? ਕਿਉਂ ਬਈ 1 ग्राम ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆ 28 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ? ਮੰਸ਼ ਦੇਖੀ 3/56 RT। 3/56 RT ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਇਆ? 3/6 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ? नहीं सर। अच्छा फिर ठीक 3/56 RT। चलो ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਔਖਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੈਲਿਊ K ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ R ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਬੋਲਟਜ਼ਮਾਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ K ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? since K is equal to R upon NA, ਤਾਂ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋਗੇ? K times ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਊਗਾ? 3/56 into KNA times T। NA ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ? ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਭੁੱਲ ਗਏ? 6.022 into 10⁻23। ਤਾਂ ਮੈਂ 6 into 10⁻23 ਲਿਖਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। 3 into 6 into 10⁻23 डिवाइड by 56 और नाल ला दियो KT। एवोगैड्रो नंबर पुट करता मैं इत्थे 18। जे कैंसल हुंदा कोई थोड़ा बहुता करके एक नूं थोड़ा ब्रीफ कर लो, ये तुहाडा आंसर है। एक्चुअली इदां दा सवाल पता नहीं बुक च है कि नहीं है, बट मैनूं पता मैं पेपर च किते ना किते इदां दा कुछ देखिया पुराने पेपर। तां जे आ जावे तां सौखे आ, मुश्किल नहीं गी, कर लोगे। तां एवरेज काइनेटिक एनर्जी बड़ी आसानी नाल कैलकुलेट की जा सकती है, डरना नहीं किसी ने। फार्मूले उही है जो करवाए हुए तुहानूं। जे खुदा ना खास्ता एनर्जी डेंसिटी लिखी मिल जाए
तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सवाल पूछ लेंदा एनर्जी डेंसिटी, तो डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दो, इसे फार्मूले च डिवाइड बाय वॉल्यूम कर, 3/2 RT डिवाइड बाय वॉल्यूम, 3/2 KT डिवाइड बाय वॉल्यूम, KT नहीं RT से मोल है ना। एक मोल दी वॉल्यूम कितनी हुंदी याद है तुहानू? एक मोल दी वॉल्यूम कितनी हुंदी आ? हुण एक तां ये नहीं याद होना इन्हां नूं। माश Sir, 22.4 liter at STP. एट STP और 22.4 लीटर, पर ये तो STP होना नहीं है ना, ये तो टेंपरेचर कोई भी हो सकता। PV is equals to nRT लग जाओ। हाँ फिर उस हिसाब दे नाल तुसीं चेंज भी करो। आ जाओ कंसनट्रेट। इस तो बाद मेरे को जी नवी चीज पेश हो रही है वो बड़े सौखे सौखे जे फार्मूले आ, ये मैं पहला लिखवा चुका तुहानू, फिर भी देख लो कि वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों भाई? लिखियो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी दे बराबर वंड दा लॉ, लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी कह लो, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी कह लो। ये की कहंदा? कहंदा एक एब्सोल्यूट टैंपरेचर यानी कि कोई गैस है वो किसी पर्टिकुलर टैंपरेचर ते है ते ओहदी जिन्नियां भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम दे कोरस्पोंडिंग हाफ KT ओहदी एनर्जी होगी। मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम दी एनर्जी कितनी हुंदी आ? हाफ KT। समझ आ रही गल कि नहीं? रिवाइब्रेशनल नूं छड्ड के, वाइब्रेशनल दी गल आपां इत्थे नहीं कर, वाइब्रेशनल नूं लीव करो। एक जिहड़ी हैगी आ कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम ओहदे कोरस्पोंडिंग जिहड़ी एनर्जी हुंदी है दैट इज हाफ KT। तो जे किसी ने 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ 3/2 KT आ जाऊगी, जे 2 होर हो गई रोटेशनल भी आ गई 5 हो गई तो 5/2 KT। फॉलो कर रहे गल नूं कि नहीं कर रहे? इस तरीके नाल असीं बड़ी आसानी नाल जिहड़ी एनर्जी आ ओहदी वंड करदे हैं टोटल एनर्जी दी। ओके कि नहीं ओके? समझ आ रहा है सारिਆਂ ਨੂੰ? आ जाओ लिखियो। It states that total kinetic energy of gas molecule is, it states that total kinetic energy of gas molecules, total kinetic energy of a gas molecule, एक molecule, total kinetic energy of a gas molecule is equally distributed among its all degrees of freedom। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ degrees of freedom ਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। equally distributed among its all degrees of freedom equally distributed among its all degrees of freedom and energy associated with each degree of freedom is, and energy associated with each degree of freedom, energy associated with each degree of freedom at absolute temperature is in at absolute temperature is half K small pi, half KT। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम दी हाफ KT है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम दी कितनी है बेटा? हाफ KT। हुण जे F डिग्री ऑफ फ्रीडम दी कितनी होगी बेटा? जल्दी बोलो। ध्यान नाल सुन लियो गल। हाफ KT एक डिग्री ऑफ फ्रीडम दी एनर्जी, ठीक है। फॉर F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो काइनेटिक एनर्जी हुण किहदी है? मॉलिक्यूल दी है ना, एक मॉलिक्यूल की गल ही कर रहे हैं आप, गैस के मॉलिक्यूल की। तो फॉर F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम
काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल दी कितनी आ गई के मॉलिक्यूल इज इक्वल टू F/2 के A molecule is equal to F/2 kT. एक डिग्री ऑफ फ्रीडम दी हाफ kT. F डिग्री ऑफ फ्रीडम अजे ओदी F टाइम्स हाफ kT. ऐदा कह दें F टाइम्स हाफ kT लिख दा, कोई दिक्कत नहीं, तुहानू समझ आ जाए ना. F टाइम्स हाफ kT या F/2 kT ऐदा लिख लो. स्टोरी क्लीयर होगी भाई, समझ आ गया तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ. ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. एक डिग्री ऑफ, अच्छा एक गल मैं तुहानू अगे भी समझाई सी, शायद याद होवे तुहाडे, भी के मॉलिक्यूल हुंदी किन्नी है. ये हुंदी आ हाफ M मॉलिक्यूल ते उहदे नाल VRMS दा स्क्वायर इज इक्वल टू F/2 kT. एक्चुअली च की आ, हां बेटा बोलो. ठीक है, ये VRMS आ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम, ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ F ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਿੰਗਲ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम ਦੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ VRMS ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਾਂ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਜਾਂ z ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਕੱਲੀ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕੱਲੇ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਾਂ ਕੱਲੇ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਾਂ ਕੱਲੇ z ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम VRMS ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय ਦੇ 3 ਲੱਗ. ਪੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਡਿਟੇਲ ਪੂਰੀ डिवाइड बाय 3 लगू, वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा. F टाइम्स 3/2 kT. मेरी गल समझो मैं की बोल रहा. ठीक है, चलो इनू आपां कल कंटिन्यू करूंगा. मैं खैर इनू मैं कंटिन्यू करूंगा. ओके, कल आपां जिहड़ियां डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट भी करांगे किन्नियां. अज इन्ना बहुत है, इस गल नू कल कंटिन्यू करके फाइंड आउट करांगे. कल खत्म आ. ठीक है, अज इन्ना बहुत है बेटा, खुश रहो, वधिया पढ़ियो.